वेलकम टू माय चैनल। लोग कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एट अ प्लेस इज नोन एज एग्रीकल्चर। No, the correct definition is the applied branch of biology which deals with cultivation of plants and rearing of animals is called agriculture. Okay. थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है पर ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है. ओके, the applied branch of biology which deals with cultivation of plants and rearing of animals. Okay, आज तक हम सोचते थे कि what is agriculture थी, तो हम सोचते थे growing plant at a place is known as agriculture. नहीं भाई, ये एग्रीकल्चर नहीं है. The applied branch of biology which deals with cultivation of plants and rearing of animals. Okay, वो जो definition है वो भी सही है. Generally, the art or practice of cultivating land is referred as agriculture, but agriculture also consists of rearing of animals. Okay, agriculture में आज तक हम जो सोचते थे सिर्फ वो ही नहीं है. Rearing of animals is also a part of agriculture. Okay, so next topic, crop. So what do you mean by crop? हम लोग क्रॉप जब सोचते हैं तब हमारे दिमाग में आता है प्लांट्स, अ टाइप ऑफ प्लांट. नहीं, when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called as crop. है ना? When plants are grown at a large scale, ऐसे एक पौधा उगा दिया ना तो उसको क्रॉप नहीं बोलते, है ना, नहीं उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, है ना. कल्टिवेट प्लांट, व्हेन प्लांट्स मतलब मेनी प्लांट्स of same kind are grown and cultivated on at one place on a large scale. बहुत सारे प्लांट्स जब एक साथ हम ग्रो करते हैं that are known as crop. Okay, next तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं. cereals like wheat, paddy, maize, vegetables like potato, brinjal, mustard, fruits like mango, orange, apple, fibers like jute, cotton, hemp, and beverages like tea and coffee, etc. So, what is next topic? Okay, classification of crops. Crops can be classified into two types. First is seasons, and second is purpose of production. Okay. Classification on the basis of season. So, classification on the basis of season has two types of crops: kharif crops and rabi crops. So, what are kharif crops? Kharif crops are the crops grown from June to September in the rainy season and are harvested and at the end of monsoon season. Okay. And second type is rabi crop. They are grown from October to March in monsoon season and they are harvested at the end of the winter season. And then the classification on the basis of purpose. So we are having two purpose: purpose of food and the purpose of cash. Okay, we need money, so money is cash, a type of cash. Okay, so first is food crops. Food crops are cultivated for food, example wheat, mango, etc. Cash crops are cultivated for commercial purpose, example rubber, tea. Okay, so next, rooftop gardening. Okay, इसका नाम ही बताया था भाई ये क्या है. रूफटॉप गार्डनिंग, रूफ के टॉप पे करना गार्डनिंग. ओके, रूफटॉप गार्डनिंग हम क्यों करते होंगे? ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज रूफटॉप गार्डनिंग. गार्डनिंग विच इज डन ऑन रूफ, फ्लैट रूफ इज नोन एज रूफटॉप गार्डनिंग. लेकिन अब रूफटॉप गार्डनिंग करते क्यों है, ये क्यों? देखिए, आप लोगों के आउटडोर स्पेस अगर कम हो, आपके आउटडोर में अगर कार्स पार्क हो रही हो, तो हम आउटडोर में लेस स्पेस रहेगी और लेस स्पेस होने की वजह से हम लोग वहाँ गार्डनिंग नहीं कर सकते. इसके लिए हम लोग गार्डनिंग करते हैं रूफ पे. ओके, रूफ टॉप पे. गार्डनिंग और ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ फ्लैट रूफ ऑफ अ बिल्डिंग और अ हाउस इज नोन एज रूफ टॉप गार्डनिंग. ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, क्रॉप प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ मेनी स्टेप्स. ओके, क्रॉप प्रोडक्शन मतलब डूइंग एग्रीकल्चर, अ टाइप ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स. First step is preparation of soil. Second is sowing of seeds, then adding manures and fertilizers, and then irrigation, then weeding, then harvesting, then threshing, and then storage. Okay,
So let's see these all steps better. Let's understand them. Preparation of soil. So what do you understand by preparation of soil? Okay. In preparation of soil, plowing is done with the help of hoe, plow, cultivator, etc. Okay. Plowing is done in preparation of soil. Process of plowing is done with the help of hoe, plow और कल्टिवेटर. अगर आपको कभी याद नहीं आ रहा हो तो बस इतना याद रखिएगा कि प्लोइंग में क्या यूज होता है. ING हटा दीजिए, प्लो यूज होता है. ओके. प्लोइंग ING हटा, प्लो यूज होता है. अगर और एग्जांपल्स पूछे तो हो, उसको होए मत बोलना प्लीज. हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं होए, अरे तेरे पास वो है होए. अगर मजदूर लोगों से बात करें तो होए है होए. नहीं भाई, ये होए क्या होता है? हो होता है वो. ओके. प्लो कैन बी वुडन एंड आयरन प्लो ऑल्सो. प्लोइंग इज ए इंपॉर्टेंट स्टेप. अब हम सोचते होंगे प्लोइंग में क्या करना है यार, प्लोइंग करके क्या करना है, हम डायरेक्ट ही सीड्स उगा देना. नहीं, पर ऐसा नहीं हो सकता. प्लोइंग इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, सच एज इट लूजन्स द सॉइल एंड हेल्प्स इन रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर एंड अपरूटिंग वीड्स. व्हाट आर वीड्स? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स. ओके. अनवांटेड प्लांट्स को उगाना, क्योंकि वो सिर्फ क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो उनको उखाड़ देना ही ज्यादा सही रहेगा. अब सेकंड स्टेप, सोइंग ऑफ सीड्स. अब सोइंग ऑफ सीड्स या तो हम हाथ से कर सकते हैं, हाथ से झूले में से निकाल के फेंकेंगे तो ऊपर की तरफ रहेंगे और वो आराम से चिड़िया आएगी, उनको उठा के ले जाएगी. और ऐसे करते करते बहुत कम हो जाएंगे वो, है ना. तो उगते तो आधे 50% तो यूं ही गायब हो जाएंगे. हाँ, मतलब एग्जैक्टली 50% ही एग्जाम्पल ले रहा था. ओके. इसका अब हम इसका वो क्या समाधान क्या है, क्वेश्चन तो मिल गया, आंसर क्या है? आंसर है सीड ड्रिल. ओके. हम सीड ड्रिल अगर यूज करते हैं तो सीड ड्रिल की वजह से जो सीड्स है वो एक डेप्थ पे अंदर करते हैं, और वो डेप्थ पे होने की वजह से उसे बर्ड्स नहीं उठा पाती है. ओके. नहीं उठा पाती है और ज्यादा सीड्स ग्रो होते हैं. स्टेप 3, एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. ओके. सो what are fertilizers and what are manures? Okay, manures तो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड. नेचुरल मैन्योर्स और मैन्योर्स लाइक काउ डंग. ओके. और मैन मेड तो बहुत सारे होते हैं. ओके. द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर्स टू द सॉइल इज नोन एज मैन्योरिंग. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? दी सब्सटेंसेस विच हेल्प इन गिविंग वन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट. ठीक है, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट देना है तब हमें काम आते हैं फर्टिलाइजर्स. और हमें मैन्योर्स कब डालते हैं? जब हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं. तो मैन्योर से लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स की होती है, और फर्टिलाइजर से जब किसी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, आगे जाके क्वेश्चन भी आएगा. हाँ, एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स. ओके. नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, irrigation. Okay, irrigation can also be classified into 2 steps or 2 classifications, modern and traditional, है ना. Point to be noted, modern and traditional. Okay, modern consists of drip system and sprinkler system. अगर आप लोग DC के होंगे, दिल्ली कॉलेज के होंगे, है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम, मतलब कि आसपास में से 3 या 4 रोज से ऐसे पानी डलता है. Sprinkler system. Okay, that system is known as sprinkler system. Traditional methods consist of देखली, मोड, चेन पंप, राहत. ओके. अगर आप कहीं गांव में जाएंगे तो आपको वहां पे ये ट्रेडिशनल मेथड्स दिखेंगे. ओके. स्टेप नंबर 5, वीडिंग. व्हाट आर वीड्स? मैंने आपको बताया था पहले स्टेप्स में, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि व्हाट आर वीड्स. वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स. ओके, that just consume the nutrient of soil. Weeding is a process of removing unwanted plants from field. ठीक है. अब उसको हम बाय तो हम उसको कटिंग दे रूट्स, उसके रूट्स काट के भी कर सकते हैं, या एडिंग वीडीसाइड्स. इन दोनों में से बेटर स्टेप है कटिंग दे रूट्स, लेकिन वो थोड़ी मुश्किल है. एडिंग वीडीसाइड्स, हम वीडीसाइड्स सीधे वहाँ पे डाल देंगे, कैसे भी वाटर टाइप में होंगे तो वाटर में मिला के या कैसे भी हम वहाँ पे डाल देंगे, है ना. लेकिन वीडीसाइड्स एक टाइप के पॉइजन्स होते हैं. ओके. ये वीडीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब पॉइजन्स होते हैं, इन्हें नहीं डालना बेटर होता है. ओके. बहुत सारे लोग जब सब्जी खरीदते हैं तब उसे धोते नहीं है, बिना धोए खा लेते हैं, और वो पॉइजन्स, हाँ, वो पॉइजन्स उनके अंदर जा सकते हैं. ओके. और द पॉइजन्स कैन हार्म देम. अब स्टेप नंबर 6, सब ग्रो हो गया, सब हो गया, अब सिर्फ बचा है हार्वेस्ट.
व्हाट इज हार्वेस्ट? द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मैच्योर प्लांट्स. ओके, मैच्योर प्लांट्स मतलब जब पौधे बड़े हो जाते हैं और उनके अंदर जो हमें चाहिए रहता है, जैसे कि वीट उगा है तो वीट आ जाता है, तब हम उसे काट, उन सब पौधों को काट के हम हमारे पास रख लेते हैं, तो दैट इज नोन एज हार्वेस्टिंग. लेकिन अब वो जो चीज, वो किसी चीज के अंदर रहते हैं ना, क्लैफ के अंदर रहते हैं. ओके, तो अब स्टेप नंबर 7 है थ्रेशिंग, सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम टिपिकली या क्लेफ जो भी है वो, फ्रॉम टिपिकली विद अ फ्लेल और बाय सम मैकेनिज्म और मशीनरी इज नोन एज थ्रेशिंग. ओके, चलिए अब हम अगली स्टेप देखते हैं. स्टेप नंबर 8 स्टोरेज. सो स्टोरेज, अब स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं? स्टोरेज सेफली इन मेटालिक बिन्स और ईदर इन जूट बैग्स. या तो हम मेटालिक बिन्स में रखें या जूट बैग्स में रखें और बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में रखें. ठीक है, मेटालिक बैग्स में रख के बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में रख दें या जूट बैग्स में रख के बड़ी बड़ी, दोनों अच्छे हैं. चलिए, हमारे अब ये प्रोसेस खत्म होती है हमारी. अब हम आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे. ओके, जैसा कि मैंने आपको स्टेप में बताया था, वीडिंग की 4th स्टेप में मैंने आपको बताया था कि वीडिंग में हम वीडीसाइड्स नहीं डालते हैं क्योंकि वो हार्म करते हैं. ओके, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी सेम टॉपिक कवर कर रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग डन विदाउट यूजिंग पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड, और एक और पेस्टिसाइड्स आ गया, उसकी जगह आएगा इंसेक्टिसाइड्स एटसेट्रा, इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए हमें पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बिल्कुल नहीं डालने हैं. और भी जो साइड्स है, साइड्स मतलब किसी को मारना, तो हम जो प्लांट्स और उनको मार देते हैं वो पॉइजन से मारते हैं, पॉइजन से, एंड पॉइजन इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. तो हमें वो बिना पॉइजन को डाले फार्मिंग करी गई फार्मिंग को बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग. नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग. ओके, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. चलिए आइए तीनों टाइप्स को देखते हैं. पहली टाइप, इंटरक्रॉपिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरक्रॉपिंग? Intercropping allows farmers to grow 2 or more crops at a time simultaneously in the same field in a definite pattern. Okay, definite pattern मतलब सेम पैटर्न, जैसे कि एक रो बनाई किसी, एक रो वीट की, एक पैडी की, एक रो वीट की, एक पैडी की, एक वीट की, एक पैडी की, ऐसे. ओके, क्रॉप रोटेशन. ओके, डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स. ओके, अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं. Therefore, to replenish the lost nutrients of soil, a new crop with different nutrients are grown. Okay, नए क्रॉप ग्रो किए जाते हैं with different nutrients. जैसे कि सॉइल में एक ऐसा प्लांट, जैसे कि वीट ग्रो हुआ, उसके अंदर डेफिशिएंसी है किसी उसकी, सपोज किसी ए नाम के न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है. अब वो ए नाम का जो न्यूट्रिएंट है उसको उस सॉइल में बढ़ाने के लिए क्रॉप रोटेशन किया जाता है. कि पहले वीट उगाया, उस चीज की डेफिशिएंसी हो गई, फिर ऐसा प्लांट उगाया जिसमें वो चीज बहुत ज्यादा बनती है. फॉर एग्जाम्पल वो ए हो सकता है नाइट्रोजन. ओके, अब हमने जो अगला प्लांट उगाया है वो ऐसा है जिसके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होता है. ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होने की वजह से नाइट्रोजन सॉइल में बढ़ जाता है और फिर हम जब अगली बार वीट उगाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब वीट अच्छे उगेंगे, उनको जब उनका जो न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है वो मिल जाएगा. ठीक है, अब थर्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग. इट अलाउज 2 और मोर क्रॉप्स टू बी सोन साइमल्टेनियसली इन द सेम लैंड. अब इसके अंदर ये है कि डेफिनाइट पैटर्न नहीं बताया है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हमने डेफिनाइट पैटर्न बताया है कि वो एक डेफिनाइट पैटर्न में ही होते हैं. मिक्स्ड क्रॉपिंग ऐसी भी हो सकती है, एक पौधा है, अब कौन इतना करे कि भाई एक रोज की उगाओ, एक रोज की उगाओ, इससे अच्छा ऐसे करके ये वाले फैला, ऐसे करके ये वाले फैला दिए, ये करते हैं लोग. तो इसको इस क्रॉपिंग को बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग. उसके अंदर जैसे कि अपन ने भुट्टा भी उगा दिया और वीट भी उगा दिया, है ना, कॉर्न भी उगा दिया और वीट भी उगा दिया, तो 2 एक साथ उग जाते हैं, लेकिन डेफिनाइट पैटर्न में जरूरी नहीं है. ओके, अगर ये डेफिनाइट पैटर्न में आ जाते हैं तो इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं इंटरक्रॉपिंग कहते हैं. ओके ओके, अगला टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री. ओके, व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड and provided with proper food, shelter and care. When done on a large scale, it is called animal husbandry. Okay, हम 1-2 गाय पाले ना, एक गाय पाले या एक कुत्ता पाले, तो उसको एक गाय पाले सपोज,
वो दूध देगी। सिर्फ एक गाय को पालना एनिमल हस्बेंड्री नहीं है, लार्ज स्केल बहुत सारे पिग्स को पाल लिया, बहुत सारी गायों को पाल लिया, दैट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। ओके, एनिमल से फूड आता है और हम उन्हें प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर देते हैं, तो एनिमल्स अच्छे से रहते हैं और हमें उसके बदले में फूड देते हैं, तो दैट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। मतलब एनिमल को अच्छे से ट्रीट करना और उनसे चीजें लेना। हाउ, अब देखिए मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 2 में, फर्स्ट थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड थी सीडिंग, ओके, एडिंग सीड्स। तो हाउ टू चूज सीड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी देखते हैं। टेक सम wheat around 150 ग्राम एंड पुट देम इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, एक बाउल ले लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया और ग्राम्स डाल दिए, वीट डाल दी, सॉरी। लीव द कंटेनर फॉर सम टाइम। ओके, ठीक है, छोड़ दिया, थोड़ा टाइम हो गया, ऑब्जर्व करना है। सम सीड्स आर फ्लोटिंग वाइल द अदर आर सिंकिंग। हाँ यार, कुछ फ्लोट कर रहे हैं, बाकी ज्यादातर नीचे ही है। The seeds which are floating are eaten by pests and are not of good quality. Okay, जो ऊपर ऊपर की सीड्स हैं वो हटा देते हैं, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। क्यों क्यों ऐसा क्यों? उनके अंदर पानी भरा चुका है, उसकी वजह से वो ऊपर, उनके अंदर मतलब इधर से हवा पास हो रही है और वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहे हैं। ओके, तो वो सही अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। Why earthworm are called farmers friend? देखिए मैंने आपसे बोला था ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। Earthworms are called farmers friend because their burrowing action helps in loosening the soil particles. Okay, उसकी वजह से soil particles लूज हो पाने हैं, तो वो farmers के friends कहलाते हैं। How soil can become deficient of nutrients? अब soil deficient nutrients की कैसे कह सकती? ओके, IIT बेस्ड नॉन MCQ क्वेश्चन बहुत लेट आए भाई, तुम अभी लेट हो गए। चलिए, when farmers grow same crop year after year, हर साल सेम क्रॉप ग्रो किया। फॉर एग्जाम्पल वीट ले लेते हैं, वीट के अंदर ए वाला न्यूट्रिएंट वीट ज्यादा लेता है। ओके, तो वो ए वाला न्यूट्रिएंट हर साल अगर ऐसे ही कम होता गया तो एक टाइम जाके ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड सॉइल कैन बिकम डेफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन अब इस न्यूट्रिएंट को बढ़ाए कैसे? अब तो जो होना था तो वो हो गया, अब इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो हो गई, पर अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालें? इसका सॉल्यूशन है एडिंग फर्टिलाइजर्स। लेकिन फर्टिलाइजर्स ऐड करना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो हार्म योर प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स आर नॉट गुड, है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ। मेन्योर्स डालो, मेन्योर्स नेचुरल मेन्योर्स डालो। ओके, जैसे कि काउ डंक, ठीक है, उसके अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा ना, कम होंगे तो ये दिक्कत, तो दूसरे नेचुरल मेन्योर्स डालने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर MCQ। चलिए MCQ क्वेश्चंस देखते हैं। वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड व्हाट? ओके, फटाफट मुझे कमेंट में लिख के बताइए। ऑप्शंस देते हैं। ऑप्शन ए सोइंग, ऑप्शन बी मैन्योरिंग, ऑप्शन सी टिलिंग, ऑप्शन डी इरिगेशन। जल्दी, आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। इसका आंसर है इरिगेशन। ओके, द करेक्ट आंसर इज इरिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीड्स आर ऑल्सो नोन एज, जल्दी बताइए मेरे को, कमेंट में लिख के जल्दी बताइएगा। वीड्स आर ऑल्सो नोन एज, वीड को और क्या कहते हैं? ए मेन क्रॉप प्लांट्स, बी इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, सी अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप, डी केमिकल सब्सटेंसेस। जल्दी बताइए। ठीक है, अब मैं आंसर देता हूँ। इसका आंसर है सी, सॉरी, इसका आंसर है सी, unwanted plants growing along the crop. And guys, thank you for watching the video and bye bye till next video and dab. Okay, और जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में।